Yes, friends. Earlier, how it was happening, there were two different vendors. One was vendor Apple and one was vendor IBM, right? IBM is working on different instructions, right? And Apple is working on separate instructions, right? So both of them have got different, right? So friends, simply speaking, let's take it this way: कि one is Greek and one is French. So obviously Greek and French cannot communicate with each other. Yes or no? So friends, if there is an organization, अगर उस organization में we are having Apple devices, right? Let's say this organization X and this organization Y. Organization X has all the networking devices, Apple devices, right? Whereas organization Y has all the devices, let's say IBM devices. So both of them have got different devices, right? So they cannot communicate with each other, right? Because both are speaking the different languages. So can I call it a communication barrier? Friends, in order to break this communication barrier, we were introduced by OSI model. OSI model, right? See, OSI model was given in 1984. OSI बोले तो Open System Interconnection, sir. Open System Interconnection, and in 1984 it was given by ISO. What is ISO? International Standard Organization. Yes, it would be International Organization For standardization. for Standardization, right? अब फ्रेंड्स ISO has given us an OSI model in 1984. इसके थ्रू क्या हुआ कि जो कम्युनिकेशन बैरियर था, द कम्युनिकेशन बैरियर वाज क्या बोलूं, Break. नहीं, Connect. communication breakdown was over, right? There was no communication barrier now. Both the devices were able to communicate. This is the feature of OSI model. ठीक है? OSI मॉडल से क्या होता है कि चाहे वो दो डिफरेंट वेंडर्स हो, दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. समझे? एंड फ्रेंड्स, ऑल्सो वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस OSI मॉडल, it's not a physical model, right? It is not a physical model, but it's a conceptual model. Conceptual, or you can call a logical model. It's a conceptual model, right? इसके अंदर कुछ कंसेप्ट हैं जिन कंसेप्ट की वजह से सब चीज़ काम करती है. इट्स अ कंसेप्चुअल मॉडल, एंड which was, yeah, whose functionality was adapted, not adopted, was adapted by TCP model. ठीक है? देखो, यह पता है आपको, before 1984, when Apple and IBM devices were communicating, there was a protocol. कुछ प्रोटोकॉल सूट तो हो गए ना जिसके ऊपर वो काम करते थे. द प्रोटोकॉल सूट वाज कॉल्ड TCP मॉडल. समझ में आई बात? It was originally, it was called TCP model, and then but in TCP model different vendors were not able to communicate, right? Then OSI has given this model, ISO has given this OSI model, right? अब OSI model के through different vendors will be able to communicate, right? These are the concepts which were given in this. अब जब वो कंसेप्ट थे तो उसके थ्रू डिफरेंट चीजें कम्युनिकेट कर सकती है, लेकिन ऑलरेडी क्या चलता होता था? टीसीपी मॉडल ना, right? Whose functionality was adapted by TCP model, and TCP IP model was launched. ठीक है? कुछ समझ में आया? Yes, sir. मतलब पहले ये TCP मॉडल था, और जब OSI की फंक्शनैलिटी को TCP मॉडल ने अपने अंदर फॉलो कर लिया तो वो क्या बन गया? TCP IP model. TCP IP मॉडल. इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड. TCP IP, ये रहा TCP IP मॉडल. देख लो, विंडोज आर में जाओ, इससे वायरलेस की प्रॉपर्टीज में जाते हैं ना, ncpa.cpl, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, क्या दिख रहा है ये?
टीसीपी आईपी मॉडल है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट मैं क्या बताना चाहता हूँ कि दोस्त टीसीपी आईपी मॉडल ही चल रहा होता है जो ओएसआई की फंक्शनैलिटी के बेस पर चल रहा है, ठीक है। एम आई क्लियर? Yes, sir. अपनी चेयर थोड़ी आगे कर, अब आराम से बैठ के बैठते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम No, sir. क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ फ्रेंड्स ओएसआई मॉडल में क्या होता है कि इन ओएसआई मॉडल वी हैव गॉट डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। वी हैव गॉट डिफरेंट लेयर्स इनटू ओएसआई मॉडल। व्हिच लेयर्स आर दोस? Application layer, एप्लीकेशन लेयर, presentation layer, प्रेजेंटेशन लेयर, session, सेशन लेयर, transport layer, सेशन लेयर, transport layer, ट्रांसपोर्ट लेयर। network layer, वेरी गुड, ये पहले ही पढ़कर आए हो क्या? data link, ये पहले ही पढ़कर आए हो? yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, Physical layer, वेरी गुड, सही में बहुत अच्छा लगा, सरदार बहुत खुश हुआ, शाबाशी दो। अब देखो अगला डायलॉग नहीं बोलूंगा मैं। अब फ्रेंड्स दीज आर द 7 लेयर्स जिसकी वजह से ओएसआई मॉडल बना है, राइट। जिस दीज आर द 7 लेयर्स जिसकी फंक्शनैलिटी ओएसआई मॉडल में चलती है। नाउ आई एम श्योर वी हैव अ लॉट ऑफ वेज, अ हेल नंबर ऑफ वेज टू रिमेंबर दीज 7 लेयर्स, हाँ है ना? yes, sir. तो बता दो मुझे थोड़ी सी। All people seem to need All people seems to need data processing, good, हाँ जी। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु दूर पड़ेगा, गुड। और इट गुड भी आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची। हाँ, ये नीचे देखो, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज एंड पिज्जाज अवे। बल्कि यार सॉसेज एंड पिज्जाज हम श्योर हमें याद नहीं रहेंगे, तो आई वुड से प्लीज डू नॉट थ्रो शाही पनीर अवे। ठीक है। और देयर आर नंबर ऑफ वेज, बिलीव में बहुत सारे तरीके हैं। देखो, आओ प्यार से थोड़ा नेटवर्किंग दे पढ़ाएं, आओ प्यार से थोड़ा नेटवर्किंग दे पढ़ाएं। अब भाई तरीके बहुत है यार, बस मुद्दे की बात ये है जिस तरीके से आपको याद हो वैसे याद कर लो। हाँ जी, हाँ शाही पनीर वाला गारंटी याद रहेगा, बुक्कड़ सारे होते हैं। चलो अब फ्रेंड्स इन लेयर्स में this layer is the 7th layer, this is the 6th layer, 5th layer, 4th layer, 3rd layer, 2nd layer, and this would be the first layer. Application, presentation and session layer, these layers are called upper layers or you can call it software layers, सही है, you can call it software layer. Transport layer can be called the heart of OSI model, ठीक है, and the lower 3 layers are called hardware layers. Now why? Because friends जो upper 3 layers हैं application, presentation, session, I'm not using any particular device onto that, but rather I'm using it on the basis of some softwares, right? Or some software, or rather than calling a software I would say some protocols, some service applications, right? मैं कुछ protocols या service applications को use करके काम चला रहा हूँ upper 3 layers पे। And then transport layer, ट्रांसपोर्ट लेयर को वी कॉल इज हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है। वो क्यों है वो सब जब ट्रांसपोर्ट लेयर करेंगे पता लगेगा। अब जो लोअर 3 लेयर्स हैं, नेटवर्क लेयर पे देयर आर डिवाइसेस व्हिच कैन वर्क, द डिवाइसेस, वो डिवाइसेस काम एक्चुअली ना नेटवर्क लेयर के ऊपर दोस्त क्या चीज जुड़ती है, आईपी एड्रेस, राइट। आईपी एड्रेस तो मालूम है ना? yes, sir. अच्छा, एप्पल टॉक मालूम है? Same way we have IP address, right? IP address is working in the Microsoft, right? Or on the other devices, right? Right? But those Apple Talk is something which is running on the Apple devices. Apple devices पे वो Apple Talk के basis पे it's communicating. Clear? Yes. Then IPv6 we know, है ना? और IPX no. See friends, earlier there used to be an operating system. The name of the operating system was
नोवल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो नोवल ऑपरेटिंग सिस्टम था, इट वाज वर्किंग ऑन द IPX। बट फ्रेंड्स, नोवल ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक अ डायनासोर नाउ, नहीं दिखता, एक्सटिंक्ट हो चुका है, राइट। IPX नोवल ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ओवर अ लॉन्ग टाइम बैक। अभी भी कोई स्टीवन स्पीलबर्ग है तो वो मूवी इसके ऊपर बना सकता है, बट एक्चुअली ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। So those these are the protocols that we use on network layer. So the devices which can understand these particular things, IP, IPX, AppleTalk, IPv6, so all these things are called network layer protocols, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क लेयर पे इन्हीं के बेस पे काम चल रहा है ना दोस्त। तो फिर नेटवर्क लेयर पे like the device like router works on the basis of IP address, right? Switch, does it works on the basis of IP address? No, on the MAC address. मल्टी लेयर स्विच की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बाय डिफॉल्ट बोल रहा हूँ भाई। बाय डिफॉल्ट दोस्त, मल्टी लेयर स्विच इज ऑल्सो ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेयर 2, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ IP एड्रेस, ठीक है। वी कैन मेक इट बिहेव, बट बाय डिफॉल्ट it's a layer 2 device. It works on the basis of MAC address. The next thing, it could be a firewall, ठीक है। इस टाइप का कोई भी डिवाइस है जो IP के बेस पर फंक्शनैलिटी इट्स परफॉर्मिंग, देन इट वुड बी कॉल्ड अ लेयर 3 डिवाइस। तो लेयर 3 पे आई एम यूजिंग द डिवाइसेस और नॉट हार्डवेयर इक्विपमेंट्स हैं ये, ओके। देन फ्रेंड्स, ऑन द डेटा लिंक लेयर, the protocols that work on data link layer is MAC address, ठीक है। मैक एड्रेस, इट कुड बी टोकन रिंग। अब टोकन रिंग क्या है ये अभी छोड़ दो, अभी दिमाग मत लगाना इस पर, ये कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैक एड्रेस है मान लो बस। तो दोस्त, दीज थिंग्स आर कॉल्ड मैक एड्रेस। मैक एड्रेस इज कॉल्ड अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। तो विच डिवाइस इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस? स्विच, yes, it could be bridge. No sir, not hub, because hub doesn't know what is the MAC address. hub के पास एक ही चीज़ है, जो भी मिला है सबको भेज दो, जिसको चाहिए उसको मिल जाए, खुला दरबार है। प्रसादा, प्रसादा पता क्या होता है? चलो शुक्र है, मैं कहीं होगा नहीं पता ना। हाँ, गुरुद्वारे का, वेरी गुड, गुरुद्वारे में प्रसादा होता है, वेरी गुड। अब फिजिकल लेयर पे क्या होता है दोस्त? फिजिकल लेयर पे वी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ बिट्स, राइट, कि मेरे बिट्स फ्लो कर रहे हैं। बिट्स कुड फ्लो वायरलेस, मे बी इट कुड फ्लो, राइट, इट कुड फ्लो थ्रू वायर एज वेल, इट कुड फ्लो थ्रू फाइबर एज वेल, कुछ भी है, या तो वो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, हाँ या ना। तो दोस्त यही चीज़ है। एंड इसके ऊपर कौन सा डिवाइस काम करता है? हब हो गया, रिपीटर हो गया, ठीक है। दीज आर द डिवाइसेस दैट वर्क्स ऑन दिस लेयर। अब ये हब, रिपीटर, स्विच, ब्रिज, राउटर, फायरवॉल, दे आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स और नॉट? So now is it making a sense that why these layers are called hardware layers? Anyone having any issue? Clear? Good. Now what we will do, one by one we will discuss each and every layer. Today for sure I won't be able to finish it, or I don't want to finish it today, right? I will finish it tomorrow, OSI मॉडल पूरा, ठीक है। आज सिर्फ कुछ बेसिक 3-4 लेयर जितनी हो जाएंगी देख लेते हैं, जितनी नहीं होंगी वो कल देखेंगे, सही है, चलो। Now friends, first of all I will start communicating, we will start discussing from application layer. Ready for that? Then fasten your seat belts. Application layer, अच्छा लैपटॉप लाए हो आज? कितने लोग रहे? गुड, वेरी गुड। एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि वो बाद में वीडियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं बड़ा परेशान होता हूँ। चलो जी फ्रेंड्स, व्हाट डू वी हैव ऑन द एप्लीकेशन लेयर? एप्लीकेशन लेयर के बारे में क्या है कि इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस, इधर वाला दबा, उससे सिर्फ वो घूमता ही रहेगा। हाँ, वाह भाई वाह। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर and the actual application program.
ठीक है. It acts as an interface between the user and the actual application program. Now see friends, what do I mean by the word interface? Interface का हिंदी मीनिंग क्या होगा? लगा दिमाग, बड़े हिंदी में शेर बनते हो. हैं? अच्छा, साझा सांझा. अच्छा, गैप. इंटरफेस का मतलब सही नहीं है वैसे. हैं? नहीं, समवेयर राइट. साझेदारी वेरी गुड. अब सांझे समझदारी गलत है, इसके पीछे छोड़ दो. अब कोई दूसरा वर्ड सोचो. Yeah, that's an answer. Platform. ठीक है. इंटरफेस मीन्स अ प्लेटफॉर्म. अब उसको हिंदी में और बता दो. So here we can work माध्यम. माध्यम. मीडियम. ठीक है. अब देखो दोस्त, it acts as an interface between the user and the actual application program. Now see, what do I mean to say by the actual application program? Friends, I want to open Gmail, right? So I will write www.gmail.com. Hi Anna. Whenever we write this, what exactly happened? What will happen? हाँ? जीमेल का पेज ओपन होगा. वेरी गुड. आप तो सीधा मोरल ऑफ द स्टोरी पे आ गए. फिर उससे पहले वो तो बताओ कि क्या क्या हुआ. हाँ, इट विल कन्वर्टेड इनटू आईपी एड्रेस. ओके, वो सर वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होगा, उससे भी पहले कुछ होगा. वो HTTP में कन्वर्ट होगा. हाँ, ये बोला. देखो दोस्त, whenever I am going to the Gmail, I am just writing www.gmail.com and automatically it will come something like this: https colon slash slash, है ना? And then something will keep on rotating here, depends on your internet speed. ये ले भाई, गलत ऐसे वाले स्लैश लगा लो यार, क्यों बुरा मान रहे हो? ये लो, ये लो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? https www.gmail.com, right? https अपने आप ही आया कि नहीं आया? Friends, what is this https by the way? Hypertext transfer protocol secure. हाँ है ना? Now friends, see, the application that I want to open is a Gmail, right? Right? So definitely I will be using some some website address for that, right? So if I want to use the website address, so automatically it will add up here HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. It could add HTTPS, it could add HTTP, it could be anything, right? अच्छा, depends on actually, depends on what. किस वेबसाइट को मैं सिक्योर करना चाहूँगा यार? जीमेल पे यू आर पुटिंग योर ईमेल आईडी, योर पासवर्ड, राइट? ऑन द जीमेल पेज, ऑन द वेबसाइट, ऑन द बैंक लॉगिन पेज, you will be putting your passwords, right? Your credentials. That is required, because if anyone can come and see your credentials, then definitely that would be a very big problem. I don't want to do that. Right or wrong? बस. और अब दूसरी तरफ, if you open the page www.networkbulls.com, so obviously it won't come by HTTPS, it will come by HTTP only, because you don't need to put any of your financial statement or your credit card information there. हाँ है ना? बस, that's it. इसका क्या मतलब है हाँ है ना? ये क्या कर रहा था? कहाँ पर है? ये यार पूरे पंगे लेता है. चलो. Now friends, I told you it acts as an interface between the user and the actual application program. Now see, user, I am the user and my actual application program is Gmail dot, right? Gmail website. So in order to open the Gmail, am I not using the HTTPS service application? Yes sir. बस तो फिर इतनी बात क्लियर है. Yes sir. HTTPS is a service application, right? पता है ना सर्विस एप्लीकेशन क्या होती है? नहीं पता? देखो, सर्विस एप्लीकेशन, दैट मीन्स with the help of some services I'm opening an application, right? किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को खोलने के लिए I need some services, yes or no? भाई इंटरनेट खोलने के लिए I need HTTP HTTPS,
है ना। FTP को एक्सेस करने के लिए यू नीड टू राइट FTP, हाँ है ना, FTP://www.microsoft.com, तो माइक्रोसॉफ्ट की FTP खुल जाएगी, अगर वो वेबसाइट एग्जिस्ट करती है तो खुल जाएगी ना। बस समझे, आगे चलूं। नाउ फ्रेंड्स, वही लाइन लिख देता हूं जो मैं बोल रहा हूं। इट प्रोवाइड्स द protocols and service application through which a user can take the advantage of a network, right? If a user wants to take the advantage of a network means I want to open the network, right? I want to use the network. So in order to use the network, I definitely need to have this, right? I definitely need to have a platform, yes or no? बस that's it. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक सभी को क्लियर है? एप्लीकेशन लेयर, वेरी गुड। नाउ द सेकंड लेयर इज, हाँ जी, नहीं 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 सर, देखो देखो देखो, डोंट गेट कंफ्यूज। सी, ये जो ब्राउजर है ना, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, राइट। सी, यूजुअली व्हाट वी गेट इज व्हाट, यही हमें यूजुअली समझ में आता है कि भाई मोजिला एक सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन वो मोजिला तो एक एक्चुअली एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं इंटरनेट को यूज कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, उसको सॉफ्टवेयर ही रहने दो, ठीक है। एक्चुअल एप्लीकेशन आपकी क्या है देखो, उस हिसाब से तो दोस्त मेरे को हर चीज में एप्लीकेशन है। उस हिसाब से तो अगर मैं इस मार्कर से इसके ऊपर लिखना चाहता हूँ, है ना, तो ये एक एप्लीकेशन है, टिप इसकी, हाँ है ना। ये टेबल इस पैड को रखने के लिए एक एप्लीकेशन है, ये धरती इस टेबल को रखने के लिए एप्लीकेशन है। ये तो लंबी बात हो जाएगी, फिर फंस जाएंगे। फिर सोलर पैनल, अपना मिल्की वे गैलेक्सी, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे यार। डिपेंड्स ऑन प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल। पहले एक बार एप्लीकेशन दे, पहले एक बार OSI मॉडल को होने दो। जब आप टेलनेट कर रहे हो ना, तो टेलनेट करते हुए यू जस्ट नीड द IP एड्रेस, हाँ या ना, राइट और रॉन्ग, बस। यू नीड द IP एड्रेस एंड ऑल्सो यू नीड द पोर्ट नंबर, टेलनेट, हाँ या ना। तो मतलब दैट विल स्टार्ट फ्रॉम पोर्ट नंबर देयर 4321, यू डोंट नीड देयर 567, डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अभी हमें ये पता नहीं पोर्ट नंबर की फंक्शनैलिटी कहाँ पर होती है, शायद आपको मालूम हो, बट बाकियों को नहीं मालूम ना। मैं तो सबको एक एज अ, आप सब लोगों को मैं, चलो एप्लीकेशन लेयर में कोई डाउट, आगे चलो। प्रेजेंटेशन लेयर, it is responsible to represent the, it is responsible to represent the data, or rather than data it would be represent the application, right, in a standard format, right। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंटिंग इट। फॉर एग्जांपल सी, यहीं पर मैंने चलाया, अब देखो यार, इस फॉर्मेट का मतलब ये मत समझ लेना कि जैसे कोई इमेज है तो इमेज के साथ में डॉट वो लगा होता है, JPG या MPG ऐसा कुछ, वो मत समझ लेना दोस्त। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एनकैप्सुलेशन, I'm not talking about that format, standard format, right? Those are the standard format which are used for the rather than a software, right? Those are used in the software rather, but not in the networks. Yes or no? भाई नेटवर्क में एक राउटर से दूसरे राउटर तक कोई
आप फोटो भेज रहे हो तो फोटो के साथ में डॉट टी एक्स लग के थोड़ी जाएगा, फोटो के साथ में डॉट जेपीजी लग के थोड़ी जाएगा। सही बात है ना। हाँ जी दोस्तों, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब आपने यहाँ पर लिखा www.gmail.com तो क्या होगा, आफ्टर हियर ऑटोमेटिकली समथिंग विल अपीयर एज, है ना। इट कुड बी HTML, इट कुड बी PHP, इट कुड बी जावा, इट कुड बी डॉट ASPX, इट कुड बी एनीथिंग, हाँ है ना। Yes, sir. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस HTML Java Technology. technology? Good sir, it's a language, right? See, HTTPS is a protocol, right? HTTPS प्रोटोकॉल क्या करेगा कि जब डेटा को सेंड करेगा ना, तो ये देखो, ये क्या है, कुछ भी लिख दिया, है ना दोस्त। HTTPS होगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसे ही फ्लो करेगा, समथिंग दैट यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट। Right, even the device cannot understand, right. That is good to flow inside the network but not for the understanding of a human, right, or not for, neither for understanding of a machine. So if the machine or the human wants to understand this, then it is HTTPS, okay. It's HTTP or HTTPS, whatever. And then through these languages, PHP, Java, ASPX, HTML, through these languages, I will be converting it into a standard form, English or a standard format. Now it makes sense, network bulls. Now I know what is written. समझे बात को, नहीं समझ में आया। देखो, HTTPS is a protocol which is flowing, right? A protocol which is carrying the data, right? Right? Carrying the data over the internet or whatever, right? But that thing is not user readable, not user understandable, right. But if I want to convert that language into some language so that a user, you and I, can understand, or a machine can understand, then I have to convert it into a proper language. Getting me? The language is, it could be HTML, Java, ASPX, PHP, whatever. अब समझ में आया? अभी भी किसी को नहीं आया तो बता दो। सही है, गुड। नाउ फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन लेयर पर क्या हो रहा है वो चीज़ क्लियर हुई है कुछ? यार हाँ या ना बोल दोगे तो क्या आग लग जाएगी दुनिया में? हाँ, आग लग जाएगी। मैंने बोला हाँ या ना बोल दोगे दुनिया में आग लग जाएगी, कह यस यस। This slide you can take it from me today. हाँ ना, देख लो, ओपन स्टैंडर्ड ISO ने दिया था 1984 में, 7 लेयर्स होती हैं। ये एक और तरीका है, प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस, a salesman can sell you actually anything. So that's it. Application layer responsible for providing networking services to the user, also known as desktop layer, provides the protocol and service application through which a user can take the advantage of a network, acts as an interface between the user and the actual application. सही बात है। अब आगे चलो। सही, यहाँ पर वैसे तो ये वाली स्लाइड इधर की नहीं होती, कट करो इसको। हाँ यार,
हाँ जी दोस्तों, देन प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा इनटू सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, बट वो फॉर्मेट होता क्या है ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिख रखे हैं। हाँ या ना, समझ में आ रहा है कुछ? एनकोडिंग डिकोडिंग मैंने क्या लिखा है, फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म्ड, राइट, कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दिस लेयर। मैंने बोला कैन बी परफॉर्म, मैंने ये नहीं बोला कि विल बी परफॉर्म। आई होप वी नो द डिफरेंस बिटवीन कैन बी एंड विल बी। हो सकता है या होता ही होता है, ठीक है। तो ये टास्क यहाँ पर परफॉर्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हो गए ही होंगे। तो whenever at the sender side I'm encoding something, so the receiver shall be able to decode it, हाँ या ना। If on one side I'm encrypting or compressing something, the user shall be able to decompress or decrypt it, हाँ या ना। Yes, sir. If the user is not able to decrypt it well, then what will happen, right? Right, won't be able to get the data, simple. अब session layer, see friends, on the session layer what exactly happened कि on the session layer responsible for establishing, maintaining and terminating the session between peer to peer. Peer to peer मतलब end to end, right? Session layer is responsible for for establishing, maintaining and terminating the session. What do I mean to say by establishing a session? Those at the time when I write here www.gmail.com, from the application layer this thing will happen, right? Presentation layer will make, let's say, HTML encapsulation, right? And then the session layer, friends, session layer will add here the session details, ठीक है। Now what is inside the session details? See, session details में क्या होगा कि भाई at what time the session was established, right? Or let me simply write the session details only, right? कि भाई from my computer the session was started at this particular time. Let's say एक गूगल क्रोम है, ठीक है। गूगल क्रोम में ये वाला टैब आपने खोला, इस टैब में आपने खोला जीमेल, राइट। ऑन द नेक्स्ट टैब यू हैव ओपन, लेट्स से फेसबुक। ऑन द थर्ड टैब लेट्स से यू हैव, आई हैव ओपन माय ऑफिशियल ईमेल एंड हियर आई हैव ओपन माय ट्विटर अकाउंट, राइट। तो फ्रेंड्स सी, tell me one thing, has it ever happened with you कि your Gmails are getting displayed in the Facebook account और Facebook updates are coming in official mail, and disaster would be कि आपके official mail आपके Twitter में display हो रहे हैं। ऐसा होता है कभी? Why? Because friends, the devices they always keep the session within, right? Session details include कि एक तो ऊपर से प्रेजेंटेशन लेयर से वट एवर इन्फॉर्मेशन इज कमिंग, राइट, द इन्फॉर्मेशन इज कमिंग वेदर इट्स एन HTTP और HTTPS और वट एवर, हाँ है ना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल कीप द इन्फॉर्मेशन कि इन द सेशन लेयर व्हाट विल बी एडेड कि व्हाट वाज दैट, कैमरा नहीं यार मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है, मेरे साथ ये चीज़ 2 बार हो चुकी है। 2 अमेरिकन थे, उनको पढ़ा रहा था, डेनियल और डेल्टन, उन लोग को पढ़ा रहा था, पढ़ाते उस टाइम खड़ा हुआ था मैं, यहाँ पर खड़ा हुआ था, एकदम से वो वहाँ से नहीं उतर के आया, मेरे यहाँ से गया था, पूरा मुंह फाड़ के ले जाता अगर लगता तो। चलो उनकी क्लास में 3 बार हुई ये चीज़, 2 बार उनकी क्लास में यही चीज़ मेरे साथ 2 बार हुई। फिर वो दोनों चले गए, वो तो 1.5-2 साल पुरानी बात है। फिर अब लेटेस्ट उनके दोस्त आए थे, उसके दोस्त थे, डैनियल के दोस्त थे दोनों, डेल्टन के दोस्त थे दोनों, शेन एंड जेरमी। वो लोग परसों वापस गए हैं 15 को, तो उनको पढ़ा रहा था NP। उस टाइम भी यही प्रॉब्लम हुई थी, क्लास में यहाँ पर खड़ा हूँ, खड़े खड़े एकदम से मेरे आगे से गया, मैंने समझा तुम अमेरिकन से कमी नहीं है। अब पता लगा बेटा तुम भी कम दिया। चलो नाउ सी फ्रेंड्स, हाँ वो बोल दे माइंड में दिख सकता है।
व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक सुना, व्हाइट मैजिक पहली बार सुना यार। चलो अब सबसे पहले देखो दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, पता नहीं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एट द टाइम व्हेन आई एम राइटिंग अ जीमेल सेशन, राइट, at the time the information come to the session layer. What the session layer will do, session layer will add the time कि this particular session for the Gmail was started at 4:44, ठीक है, ठीक है, टैग टैग लग गया उसके साथ में, and then the information will be sent down, राइट, सेशन लेयर से फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल, हाँ है ना, slowly and slowly it will move one by one layer or not, bus. This is what happens in session layer, and those session layer not only keep this information that when the session was started, at the time when from the Gmail I will hit back with a reply, है ना, whenever I will hit with a reply, whenever I will be hit with a reply, मेरे कंप्यूटर के पास जब रिप्लाई वापस आएगा तो मैं उस सेशन को टर्मिनेट कर दूंगा कि ये वाला सेशन जो चला था वो सेशन पूरा हो चुका है। समझ में आई ये बात, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है ये चीज कि व्हाट इज दिस सेशन, व्हाट दिस सेशन लेयर डू। और हाँ एक बात याद रखना, सेशन लेयर की इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे ही डिवाइस पे रहेगी, वो इंफॉर्मेशन जीमेल सर्वर तक नहीं जाएगी। The session which was created for my computer, the information will remain in my computer only, but it will not go to the Gmail server. Why? Just think logically. भाई एक बार में हम सब ने Gmail खोला है ना, अगर हम सभी की इंफॉर्मेशन वहां पर जा रही है तो मजाक नहीं बनाती है। Gmail के पास एक बार में थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, Gmail किस किस का डेटा को होल्ड करेगा यार, किस किस का डेटाबेस मेंटेन करेगा, हाँ है ना। तो दोस्तों सेशन लेयर, मेरे कंप्यूटर के सेशन, मेरे कंप्यूटर में सेशंस आर ओनली फॉर माय कंप्यूटर स्पेसिफिक, इट वोंट ट्रैवल थ्रू आउट द नेटवर्क। क्लियर और नॉट क्लियर? चलो फाइल बनती होगी सेशन लेयर, हाँ, कैश में। कैशे मेमोरी में। सर कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर्म कोई कर रहे होते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं तो रिफ्रेश करते तो आ जाता है सेशन। हाँ सर देखो वो भी एक है, सी IRCTC की वेबसाइट पे if you log in into the website and then for the 5 minutes you do not do any activity, तो automatically your session will be logged out or not? उसके लिए फ्रेंड सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, बट दैट पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ सेशन लेयर, डिड आई परफॉर्म दैट बीइंग अ नेटवर्कर? क्या नेटवर्कर ने बनाया उसको? वो किसने बनाया है? सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं सर, वेबसाइट डेवलपर ने, वो वेबसाइट डेवलपर ने बनाया ना, हाँ है ना। वह 5 मिनट तक बंदा इस पर कोई एक्टिविटी नहीं करता तो पर्सन विल बी लॉग आउट, उसका मुझे फायदा क्या है? उसको अपने आप 5 मिनट के बाद लॉग आउट करने का मेरा रीजन क्या है? नो, हाँ सही, हाँ ये आपने बिल्कुल सही बोला भाई, अगर कई सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बार में कुछ लिमिटेड लोग ही एक्सेस कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है एक बार में 100 करोड़ जनता एक्सेस कर रही है उसको, हाँ है ना। भाई आपने एक सेशन लेकर रख दिया तो वो सेशन तो आपने पूरे का पूरा बेकार कर रखा है, मेरे लिए कितना बड़ा नुकसान है यार उसका। भाई मेरे सर्वर पे उसी टाइम पे और लोग भी हिट कर सकते थे, लेकिन अब वो लोग बेचारे कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ड्रॉप हो रहे हैं पैकेट्स। वाई? बिकॉज आप बिना बात उस पर कुंडली मार के बैठे हो एक बंदा। सही बात है कि नहीं है? लोगों के, हाँ जी दोस्त, वो सेशन लेयर से ही रिलेटेड है, बिकॉज इफ टिल द टाइम, राइट, एक लिमिट होती है कि भाई मैं कब तक सर्वर के ऊपर वेट करूंगा, हाँ या ना, मैं कब तक उसकी क्यू में खड़ा रहूंगा। उसकी क्यू में ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बार गया हूँ तो जिंदगी भर वहीं पर खड़ा रहूंगा, वो भी तो कभी ना कभी एक्सपायर होगा ना। दैट्स इट। सर ये जो हम लोग नेट बैंकिंग करते हैं तो इसमें तो हमारी तो लास्ट लॉगिन की टाइम होती है वो वहाँ पे आ जाती है, तो कोई और कंप्यूटर से फिर हम लोग खोले तो उसमें तो आ जाती है तो लास्ट लॉगिन की टाइम, तो वो तो उनके सर्वर पे। हाँ जी सर, उनके सर्वर पे डाटाबेस है वो डाटाबेस उन, हाँ जी हाँ जी, देखो देखो देखो, वो सर्वर उनके डाटा, उनके सर्वर के लिए अलग सेशन लेयर है। मेरे कंप्यूटर की सेशन लेयर मेरे कंप्यूटर पे है,
right? But at the time when I hit into the server of Gmail of banking website, right? तो जैसे ही मैंने हिट करा उनका तो टाइम शुरू हो गया, वो उसका टाइम मेंटेन हो रहा है। मेरी सेशन लेयर और उसकी सेशन लेयर दोनों अलग अलग है, मतलब काम उनका सेम है, बस मेरा है कि मेरा सेशन मेरे पास है कितने बजे चल रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, उसका है कि उसके पास मेरा सेशन कितने बजे आया और कब तक चल रहा है, वो है बात वही है। मैंने नाक को ऐसे नहीं पकड़ा था, मैंने नाक को ऐसे पकड़ लिया, बात तो वही है। अब ये देख लो, it makes sure that the data of one application cannot get merged with the data of another application. भाई अगर if I don't have the session layer here, then the Gmail data might display in Facebook and official might display in Twitter. भाई साहब नौकरी चली जाएगी सबसे पहले तो। हाँ है ना, कितने खुश हो? हाँ हाँ अच्छा, मेरे को लगा मेरी नौकरी खा के खुश है तू कितना आदमी। चलो अब ये 3 लेयर क्लियर हो गई हैं। सर देखो, सेशन जिस टाइम पर आई राइट इन www.gmail.com, राइट, मेरे कंप्यूटर पे ये वाला टाइम पे शुरू हो चुकी है ना, लेकिन जो जीमेल सर्वर है, जीमेल सर्वर पे पहुंची 40405 पे, ठीक है, इसके पास इस टाइम पहुंची है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से सेशन लेयर से द इन्फॉर्मेशन विल रीच टू द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पर फाइनली इट विल चेक वेदर योर यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज मैचिंग और नॉट, राइट। इफ इट इज मैचिंग देन इट विल जनरेट अ रिप्लाई, राइट। अब जब यहाँ पर आया तो ये देखेगा ये वाला सेशन मुझे 4:04 पे मिला है, ठीक है, तो फिर ये देखेगा भाई ये वाला सेशन इस टाइम, ये जो मैं रिप्लाई भेज रहा हूँ ना, आई एम सेंडिंग द रिप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन विच वॉज स्टार्टेड ऑन 4405। आपका नाम क्या है? और 4405 पे अमित का सेशन लॉग इन हुआ था, लेकिन 446 पर अभिषेक का सेशन आया था और 447 पर अभिषेक के सेशन को मैं भेज रहा हूं, मतलब हम दोनों के सेशन की अलग अलग इन्फॉर्मेशन उसके पास हो गई ना, राइट। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन आपस में मर्ज अप हुई? हुई? हुई कैसे? ये आदमी, अबे आपने भी जीमेल खोला, मैंने भी जीमेल खोला, है ना, क्या आपके जीमेल में और मेरे जीमेल में कुछ ऐसा हुआ कि भाई आपने भी उसी टाइम पे एंटर किया, मैंने भी उसी टाइम पे एंटर किया, दोनों ने सेम टाइम पे एंटर किया, दोनों का इंटरनेट कनेक्शन सेम है, राइट, बट स्टिल आपके कंप्यूटर में आपका ही खुलेगा, मेरे कंप्यूटर में मेरा ही खुलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरे कंप्यूटर में आपकी खुल रही है, आपके कंप्यूटर में मेरी खुल रही है, ये कमाल हो गया यार, ऐसा थोड़ी होता है ना, ये भी तो बात है। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? दोस्त दोस्त दोस्त, मैं ये बात कर रहा हूँ जीमेल सर्वर की। जीमेल सर्वर पे इस टाइम पर मिला है और इस टाइम पे उसने वापस रिप्लाई जनरेट करा है। भाई क्योंकि मैं वही तो कह रहा हूँ तेरे को कि सेशन लेयर वही तो काम कर रहा है कि अगर मैंने सेम टाइम पे जीमेल और फेसबुक, मैंने दो चीज़ खोली है, तो जीमेल का सेशन उसने यहाँ पर मेंटेन करा हुआ है, जीमेल का जो उसको रिप्लाई आया है, वो जो उसको रिप्लाई आया है वो उसी का है जो 4:04 में शुरू हुआ था, और यहाँ पर जब उसको फेसबुक का रिप्लाई आएगा तो वो देखेगा कि ये उसका रिप्लाई है जो 4:04 में शुरू हुआ था। तो मैं उस हिसाब से जहाँ पर वो चीज़ थी उस सेशन के डेटाबेस को मैंने मेंटेन करा हुआ है ना, कि भाई वो वाला सेशन मेरा इस वाले टैब में यहाँ पर चल रहा है, तो मैं उसको वहीं पर खोल लूँगा, दूसरे टैब में नहीं खोलूँगा। समझे? नहीं समझा अभी? नहीं हुआ क्लियर? बोल 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 बोल। देख अब देख ना, समझ तो सही क्यों नहीं आ सकती भाई, मेरे ये तो समझ क्यों नहीं आ सकती। देख मैंने जीमेल पर पूरा फेसबुक ओपन कर दिया जीमेल को, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, पूरा कोई वो करता है ऐसा, वो करता है ऐसा जैसे कि वो सॉफ्टवेयर रहता है, वो सॉफ्टवेयर देखो की है। सी फ्रेंड्स, बस कर, सेशन लेयर्स पे यू कैन टेक इट दिस वे। भाई मैंने, ओके लेट्स सी, क्या ये सेशन लेयर का एग्जांपल होगा या नहीं होगा? सर वो कैश मेमोरी में कुकीज में चुप रह, चुप रह, चुप रह। अब देखो मैंने उसमें लिखा, आप चुप रहना,
मैंने एक टैब में लिखा www.gmail.com एंटर, जीमेल का लॉगिन पेज खुल गया, मैंने वहां पर अपना यूजर नेम डाला abhishek13.bhardwaj13@gmail.com, पासवर्ड मैंने बताऊंगा नहीं आपको, तो मैंने वो दोनों चीज डाल दी, मैंने एंटर कर दिया, खुल गया, गूगल क्रोम पे खुला मैंने। अब मैंने उसको सेशन को लॉग आउट नहीं करा, मैंने सीधा ऊपर से रेड एक्स दबा दिया, बंद हो गया। नेक्स्ट टाइम जब मैं लिखूंगा www.gmail.com तो क्या वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा? क्यों? क्योंकि मेरा सेशन मेंटेन्ड है। गलत है। उसके लिए दोस्त बोलो, सर कुकीज में जाके उसके लिए कुकीज रिस्पॉन्सिबल होंगी। कुकीज क्या होता है? हिस्ट्री, राइट? उस हिस्ट्री में उसने ऑलरेडी वो सेव करा रखा है कि भाई जब भी आपने जीमेल खोला तो मतलब ये वाली यूजर आईडी, ये वाला पासवर्ड है, कुकीज से उठाएगा फिर चलता है। दैट इज नॉट कॉल्ड मेंटेनिंग अ सेशन। मेंटेनेंस ऑफ अ सेशन वुड बी, जो आपने एग्जांपल दिया था, पता नहीं किसने दिया था, कि जब आप उस वेबसाइट पर जाते हो तो फिर एक लॉग इन टाइम चल जाता है ना, कि एट दिस टाइम यू हैव एस्टैब्लिश्ड, लेट्स से IRCTC पे, you have established at this time, okay, your session has been established, but then you are not doing any activity onto the website, right? So it will wait for 300 seconds, 300 seconds मतलब 5 मिनट है ना भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 300 सेकंड हो गए, तो उसने 300 सेकंड तक वेट करा। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट मींस योर सेशन हैज एक्सपायर्ड ऑटोमेटिकली, है ना। आप ये 5 मिनट तक होल्डिंग द सेशन वाज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ अ सेशन। जैसे ही आपने यूजर आईडी और पासवर्ड लिख के एंटर मारा, वो चीज मैच करी, दैट इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग अ सेशन। समझ में आई मेरी बात? बस। अब वो डेटा क्यों नहीं सर मर्ज होगा? क्योंकि देखो, जो आपने जीमेल का लिखा है, जीमेल का यू हैव ओपन एट 444, राइट? तो आपके कंप्यूटर डेटाबेस अपने पास रख लिया कि भाई 444 पे जीमेल की इंफॉर्मेशन चली है और वो भी टैब नंबर 1 में है, ठीक है। फिर 445 पे आपने लिखा फेसबुक, तो वो 445 पे है, इंफॉर्मेशन से रख ली, इस टाइम सेशन चला है, वो टैब नंबर 2 में है। फिर ऑफिशियल ईमेल चल रहा है मेरा 446 पे, टैब नंबर 3 में है ना। अब जब उसको रिप्लाई आएगा तो वो देखेगा कि ये रिप्लाई मेरे को 448 पे आया है, ओके, इसका सेंडिंग टाइम क्या था? 444। अब 444 पे कौन सा सेशन एस्टैब्लिश हुआ था? मुझे नहीं पता कौन सा हुआ था, डिवाइस को नहीं पता कि वो जीमेल है या फेसबुक है, मुझे क्या लेना देना है। मुझे बस इतना पता है कि ये वही वाला सेशन है जो मेरे टैब 1 में चल रहा है, वहां चिपकाऊंगा उसको, समझे? उसको ये नहीं पता कि ये जीमेल का है या फेसबुक का है, किसका है, उसे नहीं पता। भाई आपके सामने मैं कोई दूसरी भाषा कुछ लिख दूं, राइट, राइट, मैं आपके सामने कोई आप कहां से हो सर? दिल्ली से। पंजाब से तो नहीं है ना? पंजाबी भी नहीं आती ना बिल्कुल भी? थोड़ी बहुत आती है। अच्छा मैडम आपको आती है पंजाबी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल है, फिर पढ़ ला। अब भाई मैं चाहता हूँ कि जिन आप लोगों को भाई आती है पंजाबी या नहीं आती, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, बुरा ना मानना। अब भाई मैंने आपको ये लिख के दे दिया, ये लो जी, पढ़ लो, पढ़ लो। हैं? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਛੇਤੀ ਬਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ। हाँ भाई छो, कुछ नहीं लिखा, शहीद भगत सिंह लिखा, छोड़। अब क्या है देखो यार, अब यहाँ पर अगर भाई अगर कोई इसके लिए ना दोस्त, डिवाइस के लिए ये चीज़ यही है कि कोई दूसरी भाषा है, डिवाइस को नहीं पता कि ये जीमेल है या क्या है, एंड द डिवाइस एक्चुअली डजंट केयर कि ये क्या है क्या नहीं है। डिवाइस ओनली केयर्स इसकी टाइम क्या लगा हुआ है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? कि द सेशन दैट आई हैव रिसीव्ड, द सेशन स्टार्टेड फ्रॉम मी एट दिस टाइम, देन इट विल लुक इट अप कि इस टाइम पर जो सेशन चला था वो मेरा टैब नंबर 1 में चला था, ठीक है। तो वो जो डेटा आया उस डेटा को वो टैब नंबर 1 में डाल देगा, जिसके अंदर जीमेल का सेशन जीमेल के अंदर ही है, जीमेल का सेशन फेसबुक के साथ मैचअप नहीं हुआ, मर्जअप नहीं हुआ। समझ में आया कुछ? सर अगर 2 डिवाइस है सर एट ए सेम टाइम, अगर वही जीमेल अकाउंट खोला जाए और दोनों हाँ, पे सेशन 2 डिवाइसेस से आपने सेम टाइम पे जीमेल अकाउंट खोला है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अब ये तो बताओ, आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होगा, इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, अब क्या करोगे? चलो मान लो मैं आईपी एड्रेस भी सेम है, मैक एड्रेस तो अलग होगा, कुछ तो होगा बस। हाँ सर कभी कभार है ना ब्राउजर रिस्पॉन्ड नहीं करता है और वो मतलब बंद करना पड़ता है, फिर हम उसे रीस्टार्ट करते हैं तो वो पूछता है कि कहते हैं फिर से सेशन वो प्रीवियस सेशन हाँ पता है। तो 3-4 हमारे टैब में अलग अलग वेबसाइट खुली हुई है, हाँ तो उसका सब वो उन चारों को खोल लेता है क्योंकि वो कुकीज़ में सेव होती है हिस्ट्री में। तो उसका सेशन बनेगा नहीं। उसका सेशन, देखो वो जो सेशन है दोस्त, वो सेशन आपका सिर्फ ब्राउजर ने, एक सॉफ्टवेयर ने मेंटेन करा हुआ था। किसी सॉफ्टवेयर की कोडिंग ऐसी की गई है कि उसने मेंटेन किया हुआ था, समझे बात को? अब भाई आपके जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्ड है, विंडोज़ वर्ड की फीचर क्या होते हैं कि आपने कोई गलत वर्ड लिखा है, कोई कोई गलत वर्ड मतलब से है मेरा कि स्पेलिंग वगैरह आपने गलत लिखी है, ठीक है, गंदी गंदी भाषा में ले जाओ उसको, तो आपने वहां पर कोई आपने कोई गलत स्पेलिंग लिखी है, तो वो उसको अपने आप नीचे रेड 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 दिखा देता, उसके नीचे की नहीं दिखाता। अब आप उस पर राइट क्लिक करके करते हो इग्नोर, फिर दिखाता है? क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि बाय, हाँ इग्नोर मारा है, वेरी गुड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी जो प्रायोरिटी थी, यू हैव चेंज द उसकी जो बाय डिफॉल्ट जो उसकी लैंग्वेज है कि भाई तू इस चीज को दिखाएगा, उसको आपने इग्नोर कर दिया, भाई तू मत दिखा। आपने उसको ओवरकम कर दिया कि नहीं करा? बस वही तो हो रहा है। जैसे जब हम डेटा कॉपी करते हैं तो वो भी एक सेशन लेयर का एग्जाम्पल है, वो दिखाता है पूरा कितना डेटा कितना टाइम लेगा। हाँ